Students, we are started reproduction in lower and higher plants. In first lecture we have finished reproduction in lower plants, that is asexual reproduction. Now we are starting for the higher plants, that is angiospermic plants, reproduction in angiosperm, and that reproduction in, that is a sexual reproduction in higher plants. Before that, this is the revision: reproduction in lower and higher plants. Definition of reproduction: this is difference between the asexual and sexual reproduction. These are the asexual reproduction types: binary fission, fragmentation, budding in hydra, spore formation in bacteria and fungi, conidia formation, zoospore formation, regeneration in lizard, vegetative propagation, cutting, root cutting, stem cutting, leaf cutting, then budding, grafting. These are the various methods I have explained you already. Now we are going to the sexual reproduction in plants. This is sexual reproduction in plant. Reproduction in lower and higher plants, this is the main chapter. In that we are going to the sexual reproduction in plants. For the sexual reproduction, a requirement is present. Requirement: two parents, egg and sperm. This is for the mammals or other organisms combining different genetic material. Here you have given an example of this one is the example: 23 chromosomes from the father and 23 chromosomes from the mother combined to form a fertilized egg. That fertilized egg means formation of a zygote then converted into the embryo. अभी यहाँ पे जो आपको दिया हुआ है, दिस इज़ ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन. यहाँ पे ये ओवम दिख रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्पर्म है, उसको जो पहले जाएगा वो वहाँ पे फर्टिलाइज करेगा और आफ्टर दैट देयर इज़ अ डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू चाइल्ड. नाउ हियर द क्रोमोजोम्स आर गिवन हियर. टू क्रोमोजोम्स आर गिवन. कौन से कैरेक्टर कैसे उसके अंदर आते हैं वो यहाँ पे दिखाने की कोशिश किया है उन्होंने, फ्रॉम द डैड एंड फ्रॉम द मॉम. ओके, ये सभी के सभी कैरेक्टर्स बाद में कॉम्बिनेशंस में आएंगे इन दैट चाइल्ड. नाउ वी आर गोइंग फॉर द sexual reproduction in the angiosperm. Now in angiosperm, flower is a main part, and that is a highly condensed reproductive shoot of angiospermic plant developed for the sexual reproduction, and in that you have the parts of the flower. Now here you can see at the lower side this part is called as a this part is called as a pedicel. After that this is a receptacle, that is also called as a thalamus. Then from the outer side accessory whorls are present. Accessory whorls are two, that is a calyx and corolla. Calyx single, they are called as a sepals, and the corolla, these are the colored one. Next condition is present here, that these two parts are called as a androecium and gynoecium. This part, which is anther and filament, combined to form a one stamen. Now this all stamens are combined to form androecium. Now here stigma, style and this ovary, this is the part stigma, style and ovary. Now the stigma is receiving the pollen grain, style is responsible for the transport of a pollen tube, and here at the lower side in ovary the presence of ovules, and that ovules are fertilized after the pollination. This is the sexual reproduction you have seen in the first lecture also. Now sexual reproduction is proved
reproduction produces a greater chance of variations in the species than the asexual reproduction. अभी greater chance क्यों? तो greater chance इसके लिए कि यहाँ पे variations आ जाते हैं, and variations are adapting to the that natural environment, and that's why here the adaptive capacity is more than the asexual reproduction. These variations improve the chances of species will adapt to this environment and survive. मतलब सर्वाइवल के चांसेस, जिंदा रहने के चांसेस उनका बढ़ाता है कौन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. यह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होता है. Pollen is produced in a male organ of the flower, that is anther. Pollination occurs. Pollen is transferred from the anther to the female organ by the wind or by animals. Maybe also it is transfer from the water also. If the female stigma receptive to pollen grain, the pollen produces a pollen tube which grows through the female tissue to the egg where the fertilization take place by the male gamete. वहाँ पे क्या होता है देखो, यहाँ से ऊपर जो रिसेप्टेकल रहता है, रिसेप्टेकल के अंदर से पोलन ट्यूब जाता है. पोलन ट्यूब जाएगा स्टिग्मा, स्टाइल, और उसके बाद ओवरी के अंदर जाएगा. ओवरी के अंदर जाने के बाद वहाँ पे वो अंदर जाएगा ओवल के अंदर. ओवल के अंदर जाने के बाद वहाँ पे एग को ढूंढेगा, और एग के अंदर जाने के बाद वो फर्टिलाइज़ करेगा, और फर्टिलाइज़ करने के बाद वहाँ पे सीड तैयार होगा, और जो सीड ही है वो नया प्लांट डेवलप करता है. Okay, now this is a flowering plant. In that flowering plant you can see here, this is a flower of a plant that is a Hibiscus rosa sinensis. In Marathi we can call it as a Jaswand. Same plant but the color is different. Here you can see the parts of the flower. जनरली यहाँ पे जो स्टेम लिखा है वो स्टेम नहीं है, इट इज़ कॉल्ड एज अ पेडीसेल. पेडीसेल दैट इज़ अ स्टॉक. हियर यू कैन सी दिस इज़ अ रिसेप्टेकल दैट इज़ अ थैलेमस. थैलेमस के ऊपर वहाँ पे आपको यहाँ पे अंदर जो दिख रही है वो ओवरी है. यहाँ पे इसके बाजू में ये स्टेमिनल ट्यूब जा रही है ऊपर. उसके बाहर आप देख सकते हैं दीज आर द ईपी कैलिक्स. यहाँ पे ये कैलिक्स दिखाई दे रहा है. कैलिक्स के बाद करोला दिखाई दे रहा है. करोला के बाद ये स्टेमिनल ट्यूब. स्टेमिनल ट्यूब के ऊपर यहाँ पे ये नंबर ऑफ स्टैमेन्स यू कैन सी. इनको एंथर और फिलामेंट तो स्टैमेन, और ये स्टैमेन्स ने सभी के सभी फिलामेंट को जॉइंट करके ये स्टेमिनल ट्यूब तैयार कर दिए. और ऊपर आप जाके देख सकते हैं यहाँ पे स्टिग्मा है, पेंटाफिड स्टिग्मा. 1 2 3 4 5 पेंटाफिड स्टिग्मा आपको देखने को मिल सकता है. अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे इसका डिसेक्शन किया हुआ है. डिसेक्शन में आप देख सकते हैं कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम सभी के सभी यहाँ पे रखे गए हैं. आप देख सकते हैं पहला है यहाँ पे कैलिक्स. कैलिक्स के ईपी कैलिक्स यहाँ पे आप देख सकते हैं. इधर ईपी कैलिक्स है, ये रिसेप्टेकल है. यहाँ पे कैलिक्स है, 5 कैलिक्स आर प्रेजेंट. उसके बाद करोला यहाँ पे 5 दिखाई दे रहे हैं. एंड्रोशियम यहाँ पे दिखाई दे रहा है. दैट इज़ अ मोनोअडेल्फस स्टैमेन इज प्रेजेंट हियर. आफ्टर दैट यू कैन सी दीज आर द स्टिग्मा, 5 स्टिग्मा you can see. This is a style, long style is present, and you can see this is the ovary. If you go for the ovary, if you cut the ovary, you can see the ovary is 5 chambered as like a भिंडी. भिंडी मालूम रहेगा आपको, भिंडी के जैसा वहाँ पे दिखाई देगा. Okay, now we are going inner side of the flower. In the flower we have to see the structure of stamen. Now this is the structure of stamen. This is anther, and this is filament. Both combine to form a stamen. Now the stamens having a 4 different जनरली पार्ट्स इनर साइड ऑफ दिस. स्टैमेंस मतलब मैं एंथर की बात कर रहा हूँ. एंथर के अंदर 4 अलग अलग पार्ट आपको दिखाई देंगे. जनरली इनको 2 पार्ट ही बोला जाता है. तो पहला उनको लिखा जाता है डाइथिकस. अभी डाइथिकस मतलब ये बाइलोब्ड रहते. बाइलोब मतलब 2 लोब इनको रहेंगे. नेक्स्ट इज प्रेजेंट दे आर टेट्रास्पोरेंजिएट. अभी टेट्रा मतलब भी यहाँ पे है 4 पोलन सैक यहाँ पे रहेंगे. दैट्स वाई टेट्रा,
4, टेट्रा मतलब 4, टेट्रा मतलब 4, स्पोरेंजिएट मतलब यहाँ पे स्पोर के सैक है, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज अ टेट्रा स्पोरेंजिएट। नेक्स्ट इज प्रेजेंट दैट इज़ अ 4 पोलन सैक, वही लिखा हुआ है उधर। ओके अभी लेकिन बायथिकस का मतलब है 2 लोब्स रहेंगे, वो आगे हम देखेंगे 2 लोब्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक सिंगल लोब है, यहाँ पे कर्सर देखो ज़रा, ये सिंगल लोब है और ये दूसरा लोब है। ओके तो इसकी वजह से इनको बोला जाता है बायथिकस। नेक्स्ट अभी आपको डायग्राम जब निकालना है तो डायग्राम निकालते वक्त ये आप डायग्राम ऐसा भी निकाल सकते हैं, या पूरा का पूरा ये निकालने के बाद ये ऐसा वाला एक पोर्शन जो है उसके अंदर आप ये पोर्शन इमर्ज करेंगे इसके अंदर। ओके नाउ सी हियर द पार्ट्स ऑफ दिस टीएस ऑफ एंथर। Now if you go for the TS of anther, you can see the epidermis. Now epidermis, that is a single layer epidermis is present. Then second is present endothecium, that is also single layer. Third is present, that is a middle layer, 1 to 2 layer thickness का रहता है ये. Then next is present, that is a tapetum is there. You can see the tapetum. Okay. Now the tapetum is having a 3 functions. अभी पहला फंक्शन है वो न्यूट्रिशन देता है, जो भी वहाँ पे पोलन ग्रेन्स तैयार होने वाले रहते हैं उनको वो न्यूट्रिशन देता है। न्यूट्रिशन देने के बाद दूसरा उनको वो सेपरेट करता है, और सेपरेट करने के बाद वो उनका एग्जाइन, दैट इज़ अ प्रोटेक्टिव कोट बनाता है उनके ऊपर, दैट इज़ कॉल्ड एज अ एग्जाइन। और उसके बाद यहाँ पे ये डेहिसन्स दिखाया है, हम थोड़ा सा ये फिर से बाद में देखेंगे। ओके पहले आगे जाते हैं कि ये these are the layers of TS of anther. First we have to see the epidermis. It is a single layer, tubular cells, and it is protective. Second is present endothecium, radially elongated cells, fibrous callose thickening is present, and they are hygroscopic. अभी यही दो की वजह से, हाइग्रोस्कोपिसिटी और फाइब्रस कैलस थिकनिंग की वजह से इसके अंदर कंडीशन ऐसा होता है कि एट मैच्योरिटी इट बस्ट, and after the bursting it gives a pollen grains outer side. Third layer is present, that is a middle layer, generally it is for the protection and disintegrate at the maturity. Next layer is present, that is a tapetum, which is a nutritive. Next condition is tapetum nutrition, then next separation, exine formation, and that's why tapetum is very very important. Next condition is present, मतलब inner side, totally inner side microspore mother cells are formed, and these microspore mother cells are present here, which are diploid in nature, and from one of that a microspore mother cell, and these one cell, that is go under the meiosis, and after the meiosis they are forming a pollen grains. In this you can see this particular part is present, which is of anther, TS of anther, and after the TS of anther, this is the anther. In this anther the endothecium wall is synchronized here, मतलब ये पीछे खींचती है, और पीछे खींचने के बाद यहाँ से ये ओपन हो जाता है, और ओपन हो जाने के बाद ये अंदर के सभी पोलन ग्रेन्स है वो बाहर निकल जाते और वो ट्रैवलिंग करते अप टू द स्टिग्मा। नाउ पोलन फॉर्मेशन, मैंने पहले ही आपको बोला कि 2n कंडीशन यहाँ पे रहेगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल का दूसरा नाम है पोलन मदर सेल। उसके अंदर मियोसिस होगा, मियोसिस के बाद वहाँ पे होगा टेट्रैड ऑफ माइक्रोस्पोर्स, मतलब 4 वहाँ पे हैप्लॉइड कंडीशंस में तैयार हो जाने वाले सेल्स। ये माइटोसिस से फिर से उसके अंदर माइटोसिस होता है, माइटोसिस के बाद वहाँ पे 2 सेल तैयार हो जाते हैं। एक सेल को हम बोलते हैं जनरेटिव सेल, दूसरे सेल को बोलते हैं ट्यूब सेल, और उसके अंदर 2 न्यूक्लियस भी रहते हैं। ट्यूब सेल के अंदर ट्यूब न्यूक्लियस और जनरेटिव सेल के अंदर जनरेटिव न्यूक्लियस। उसके बाद वहाँ पे तैयार हो जाता है पोलन ट्यूब, और पोलन ट्यूब के अंदर वहाँ पे फिर से माइटोसिस हो जाता है। यहाँ पे उन्होंने स्पर्म्स लिखा है, लेकिन यहाँ पे ये स्पर्म्स चल सकता है, लेकिन यहाँ पे हम जनरली प्लांट के लिए वहाँ पे लिखते हैं मेल गैमेट। ऐसे 2 मेल गैमेट वहाँ पे तैयार हो जाते हैं। ओके,
और ये मेल गैमेट बाद में वहाँ पे 2 जगह पे फर्टिलाइजेशन करते हैं. नाउ दिस इज़ अ टिपिकल पोलन ग्रेन. टिपिकल पोलन ग्रेन इट इज़ अ नॉन मोटाइल हैप्लॉयड यूनिसेल्यूलर. ये नॉन मोटाइल है, मतलब इधर से उधर जा नहीं सकता, इसको किसी से तो ट्रांसफ़र करना पड़ेगा. अभी किसी से तो ट्रांसफ़र करते हैं, इसका मतलब है यहाँ पे हम उसको ट्रांसफ़र करते हैं पानी से. हम मतलब एनवायरनमेंट ट्रांसफ़र करता है पानी, उसके बाद बर्ड्स ट्रांसफ़र करते हैं, पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफ़र और करते हैं. वाटर तो पहले बोला मैंने. और ट्रांसफ़र करते हैं इंसेक्ट्स. तो ये सब ट्रांसफ़र हो जाने के बाद वो आएगा स्टिग्मा के ऊपर. स्टिग्मा के ऊपर वहाँ पे जर्मिनेट हो जाएगा. बाद में हम उसके पार्ट देख रहे हैं. इट इज़ अ नॉन मोटाइल हैप्लॉयड यूनिसेल्यूलर. यूनिसेल्यूलर है, सिंगल सेल यहाँ पे रहेगा. यहाँ पे अब हमने बाद में माइटोसिस हो जाने के बाद 2 सेल्स तैयार हो जाता है. उसके बाद स्पोरोडर्म बाइलेड रहता है. अभी ये स्पोरोडर्म मतलब ये लेयर और ये लेयर, ये 2 लेयर रहते हैं यहाँ पे एक्साइन प्रोटेक्शन के लिए. ये स्पोरोपोलिनिन से तैयार हुआ रहता है. ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, रेजिस्टेंट टू द केमिकल्स है, स्मूथ है और स्कल्पचर्ड रह सकता है. इसकी वजह से अभी ये कंडीशन की वजह से, एक्साइन की कंडीशन की वजह से नॉन बायोडिग्रेडेबल और केमिकल, ये बहुत सालों तक वैसा का वैसा रहता है. मतलब फॉसिलाइज हो जाता है. मतलब इसका एनवायरनमेंट का इफ़ेक्ट नहीं होता है, किसी बैक्टीरिया का इफ़ेक्ट नहीं होता है, या केमिकल्स का भी इसके ऊपर इफ़ेक्ट नहीं होता है. इसकी वजह से ये हज़ारों सालों तक वैसा का वैसा ज़मीन के अंदर पड़ा रह सकता है. एंड दैट्स वाई इट कैन बी फॉसिलाइज. फॉसिल के जैसा बना हुआ रहता है. इसकी वजह से करोड़ों साल में कौन से टाइम में प्लांट तैयार हुए थे, ये हम निकाल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अ पोलन ग्रेन्स. मतलब समझ सकते. नेक्स्ट है, हम जाएंगे जर्म पोर. अभी ये जर्म पोर है एक्साइन के ऊपर. जहाँ पे एक्साइन थीन रहेगा उधर से पोलन ट्यूब बाहर आता है और उसको बोला जाता है जर्म पोर. ओके. नेक्स्ट है इंटाइन. इंटाइन इज़ अ थीन सेलुलोज और पेक्टिन का बना हुआ रहेगा. जनरली जब पोलन ट्यूब बनता है तो ये इसी इंटाइन का पोलन ट्यूब बनता है. उसके बाद साइटोप्लाज्म 1 और 2 सेल, मतलब अगर माइटोसिस के पहले है तो 1 सेल रहेगा, माइटोसिस के बाद में 2 सेल्स अपने को देखने को मिलेगा. तो यहाँ पे मैंने एक्साइन के बारे में जो लिखा था ना, तो एक्साइन के बारे में जो लिखा है उसका क्वेश्चन नीचे दिया हुआ है. व्हाई पोलन ग्रेन कैन रिमेन वेल प्रिजर्व्ड एज अ फॉसिल. उसका आंसर क्या रहेगा? It is non-biodegradable, resistant to the chemicals and it can stand for the environmental factors. मतलब उसके ऊपर कुछ इफ़ेक्ट नहीं होता है, तो इसकी वजह से ये क्या होता है, it can be well preserved as a fossil. Next है development of a male gametophyte, that is also called as a microgametogenesis. माइक्रो मतलब छोटे, गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमेट फॉर्म हो रहे हैं, और फीमेल को बोला जाता है मेगा गैमेटोजेनेसिस. यहाँ पे हम बोलेंगे कि डेवलपमेंट ऑफ द मेल गैमेटोफाइट या माइक्रो गैमेटोजेनेसिस. अब यहाँ पे ये जो है सिंगल सेल का, मैंने जैसे पहले ही बताया, ये सिंगल सेल का पोलन ग्रेन है. यहाँ पे 2 सेल का पोलन ग्रेन है. 2 सेल के पोलन ग्रेन में आप देख सकते हैं वहाँ पे उन्होंने अभी प्रोथेलियल सेल लिखा है. यहाँ पे प्रोथेलियल सेल, उसके बाद जनरेटिव सेल, ट्यूब सेल. अभी ये थोड़ा सा इसके अंदर गलत है. नेक्स्ट यहाँ पे आप प्रोथेलियल सेल दिखा सकते हैं, स्टॉक, बॉडी सेल, पोलन ट्यूब, न्यूक्लियस, ये सब आपको देखने को मिलेगा. लेकिन कंडीशन रहता है 2 सेल स्टेज में. मैं फिर से बैक जा रहा हूँ. इन दिस कंडीशन 2 सेल स्टेज, अब यहाँ पे 2 सेल स्टेज के लिए वहाँ पे फिर से यहाँ पे इनके दोनों के बीच में एक लाइन रहना चाहिए था. ओके. अभी कंडीशन यहाँ पे है कि 2 सेल स्टेज में यहाँ पे लिबरेट किए जाते हैं पोलन ग्रेन्स. लिबरेट करने के बाद वो जाते हैं स्टिग्मा के ऊपर. स्टिग्मा उनको 20% शुगर सॉल्यूशन देता है. 20% शुगर सॉल्यूशन देने के बाद अगर वो उसी प्लांट का रहेगा तो जर्मिनेट होगा. जर्मिनेट हो जाने के बाद यहाँ पे ऐसा पोलन ट्यूब तैयार हो जाएगा. पोलन ट्यूब के अंदर से ट्यूब न्यूक्लियस आगे आगे चला जाएगा, तो वो पाथ फाइंडर करके काम करता है. आफ्टर दैट फ्रॉम द बैक साइड
the generative nucleus is coming, and generative nucleus is developing into the two male gametes. Now these two male gametes are going inner side, and these are responsible for the fertilization of, one is going at the egg and one is going to the secondary nucleus, and there is a double fertilization take place. This is the journey of pollen grain. You can see this is the anther. एंथर के अंदर से बाहर निकला है, सिंगल सेल का है, बाई सेल मतलब 2 सेल का हो गया है, सॉरी दिस इज़ अ माइक्रोस्पोरोसाइट, मतलब वहाँ पे उन्होंने पोलन मदर सेल दिखाए, पोलन मदर सेल के अंदर मियोसिस हो गया, दिस इज़ द फर्स्ट मियोसिस, दिस इज़ द सेकंड मियोसिस, सेकंड मियोसिस के बाद टेट्राड फॉर्मेशन हो गया, टेट्राड फॉर्मेशन के बाद माइक्रोस्पोर, मतलब उसमें से उन्होंने एक पोलन ग्रेन लिया है, एक पोलन ग्रेन फिर से वैक्यूल है, इसके अंदर दिख रहा है ये पोलन है, पहला माइटोसिस हो गया, 2 सेल तैयार हो गए, 2 सेल के बाद यहाँ पे ये जर्मिनेट हो रहा है, और जर्मिनेट हो जाने के बाद वहाँ पे 2 आप गैमेट देख सकते हैं उसके अंदर, वो गैमेट वहाँ पे नीचे फर्टिलाइजेशन करने के लिए चले जाएंगे. ओके, नाउ दिस इज़ अ ऑर्थोट्रोपस ओवल एंड एनाट्रोपस ओवल. ऑर्थोट्रोपस ओवल का जो पार्ट रहता है वो ऊपर के साइड में रहेगा, माइक्रोपाइलर एंड इज एट द अपाइकल साइड, वाइल इनर साइड ऑफ द एनाट्रोपस ओवल इट इज एट द लोअर साइड. ओके, दिस इज अ गाइनोशियम. गाइनोशियम के अंदर ये ओवल्स रहते हैं, तो ये है स्टिग्मा, यह है स्टाइल, और ये ओवरी. और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रक्चरल कार्पेल, दिस इज़ अ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवल. और ओवरी वॉल के अंदर के साइड में यहाँ पे ओवल्स दिख रहे हैं. ओके, ओवल एक रह सकता है या मल्टीपल भी रह सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द प्लांट टू प्लांट. नाउ आई हैव शोन दिस फॉर ड्राइंग ऑफ योर anatropous ovule. You have seen this, this is anda, egg, yes, but generally this egg is a embryo, लेकिन ये उबाला हुआ है. तो अभी मैंने वो अंडा क्यों दिखाया था वो मैं अभी बता रहा हूँ फिर से. ये जो अंडा दिखाया इसको आपको इमेजिन करना है, इसके बाहर के साइड को और 2 लेयर है, इसके बाहर के साइड को और 2 लेयर है. ओके, और उसके बाद उस लेयर को यहाँ से नीचे लाना है, यहाँ से नीचे लाना है. ओके, तो अपना ये एग तैयार हो जाएगा, एग तैयार हो जाएगा, मतलब ये एग इज़ कन्वर्टेड इनटू द एनाट्रोपस ओवल. ओके, अभी अंडे के अंदर आप देख सकते हैं कि अंडे के अंदर ये बाहर का जो वाइट पार्ट है दैट यू कैन सी दिस इज़ अ न्यूसेलस, और इनर का ये जो येलो पार्ट है वो आप बता सकते हैं कि ये एम्ब्रियो सैक है. ओके, यस. नाउ दिस इज एनाट्रोपस ओवल. व्हेन द फ्यूनिकल एंड द इंटेगमेंट्स आर पैरेलल टू ईच अदर एंड माइक्रोपाइल फेसिंग डाउनवर्ड, then the oval is called as a anatropous oval. Now in the anatropous oval there are various parts are present. Anatropous oval पहला जो इसका पार्ट है that is called as a funiculus. You can see this is a funiculus, और ये यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं, नीचे ये यहाँ पे अटैच होगा, that attachment is called as a placenta. placenta को ओवरी के अंदर अटैच रहेगा. Now this is a funiculus that is a funiculus which is giving a nutrition, also responsible for the support and attachment. Next is present, this is a chalaja. Now this chalaja is joining all the integuments, सभी के सभी integuments को यहाँ पे वो joint करता है. ओके, अभी chalaja और ये funiculus जहाँ पे joint होता है उस region को बोला जाता है hilum. ओके, और यहाँ पे ये जो marking है उसको बोला जाता है raphe. Next is present, that is integuments. Here 2 integuments are present, outer and inner. 2 integuments. Inner side of the angiospermic 2 integuments are present. That's why this oval is called as a bitegmic. तो यहाँ पे 2 इंटेगमेंट है, इसकी वजह से बाइटेगमिक बोला जाता है ओवल को. तो इंटेगमेंट्स आर प्रेजेंट हियर, बोथ आर फ्लेशी एंड प्रोटेक्टिव इन फंक्शन. After that they are converted into the, मतलब after fertilization these are converted into the seed coat and tegmen. Now come to the inner side. This is a part which is called as a nucellus. This is nucellus, not a nucleus. Nucellus spelling देखो ज़रा.
nucellus. Now the nucellus is a nutritive tissue and all cells are in Twin condition. These Twin condition cells, one of the cell from that is going under the division and converted into the megaspore mother cell, and that megaspore mother cell is going to form a embryo sac after the dividing condition. You can see the embryo sac. Now here in embryo sac you can see here at the chalajal end antipodal cells are present, 3 antipodal cells each having a N and N condition is present here, that is a haploid antipodal cells are present. At the middle you can see डिफिनिटिव न्यूक्लियस, दैट इज़ अ सेकेंडरी न्यूक्लियस. ऊपर से एक न्यूक्लियस, नीचे से एक न्यूक्लियस आया था और दो न्यूक्लियस जॉइंट हो गए थे, हैप्लॉइड कन्वर्टेड इनटू द डिप्लॉइड न्यूक्लियस विच इज़ कॉल्ड एज अ सेकेंडरी न्यूक्लियस. माइक्रोपाइलर साइड को आप देख सकते हैं, मिडल में एक दिख रहा है और साइड में दो सिनर्जिड्स दिख रहे हैं. नाउ दीज सिनर्जिड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे हैविंग अ फिलीफॉर्म apparatus एंड दीज आर अट्रैक्टिंग टू द पोलन ट्यूब, और वहाँ से ही पोलन ट्यूब अंदर एंट्री करता है. उसके बाद यहाँ पे माइक्रोपाइलर एंड है, तो माइक्रोपाइल वहाँ पे दिख रहा है, माइक्रोपाइल के अंदर से ही पोलन ट्यूब जनरली इंट्रोड्यूस होती है. नेक्स्ट, दिस इज़ अ एम्ब्रियो सैक, मतलब अंदर का पार्ट सिर्फ एम्ब्रियो सैक. दिस इज जनरली आल्सो कॉल्ड एज अ मेगा गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक. नाउ एम्ब्रियो सैक, अगर हम एनाट्रोपस ओवल देख रहे हैं तो एनाट्रोपस ओवल के अंदर यहाँ पे ये एंटीपोडल सेल्स है, यहाँ पे आपको सेकेंडरी, ये अगर सिंगल आपको दिख रहे सेल्स मिडल वाले, न्यूक्लियस मिडल वाले, तो इनको बोला जाएगा कि पोलर न्यूक्लिया. जॉइंट हो जाने के बाद ये बनेंगे सेकेंडरी न्यूक्लियस. मिडल में आपको दिख रहा है ये, दिस इज़ अ nucleus of a egg cell, and outer side you can see these two with a blue color nucleus. These are called as a synergids. Now this is a angiosperm gametophyte development. Now in the angiosperm gametophyte development you can see this is a primitive stage of a angiospermic gametophyte. Inner side you can see this is generally anatropous oval. Inner side of the anatropous oval you can see this is the generation of a single cell. This is generally called as, ये सेल आपको दिख रहा होगा, ये सेल को जनरली आप बोल सकते हैं megaspore mother cell. Megaspore mother cell divided into the 2 cells. Now this is dividing into the 4 cells. Lower 3 cells are going to disintegrate and मेन ऊपर का सेल है, वो ऊपर का सेल वो डिवाइड होना शुरू हो जाता है फिर से, और डिवाइड उसका न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड होना शुरू हो जाता है. तो ये फंक्शनल करके काम करता है. फंक्शनल करके काम करने के बाद इसके अंदर दो न्यूक्लियस तैयार हो गए, दोनों भी हैप्लॉइड हैं. ये हैप्लॉइड न्यूक्लियस तैयार हो गए. हैप्लॉइड न्यूक्लियस तैयार हो जाने के बाद फिर से यहाँ पे दोनों साइड को ये चले गए, दोनों साइड को चले गए, मतलब एक माइक्रोपाइलर एंड को और एक चलाजल एंड को. जो चलाजल एंड को गया उसके अंदर भी माइटोसिस हो जाता है, ये हो गया इसके अंदर भी माइटोसिस हो जाएगा. ऐसे 2 बार माइटोसिस हो जाता है, 3 बार माइटोसिस हो जाता है. और 3 बार माइटोसिस हो जाने के बाद यहाँ पे जनरली जो तैयार हो जाता है दिस, फिर से साइड से मतलब माइक्रोपाइलर एंड और चलाजल एंड से एक जो न्यूक्लियस बीच में से उन्होंने लिया था ना, वो फिर से वापस कर रहे हैं वो. तो यहाँ पे ये फिर से जॉइंट हो जाएंगे और वो उसका बनेगा सेकेंडरी न्यूक्लियस. चलाजल एंड वाले बनेंगे एंटीपोडल सेल्स और माइक्रोपाइलर एंड वाले बनेंगे एग एंड सिनर्जिड्स. एंड दिस इज़ द पोजिशन ऑफ दिस इज़ अ ओवल एंड दिस इज़ अ स्टिग्मा. ये स्टाइल है और ये ओवरी के अंदर ऐसा अरेंजमेंट रहता है. यहाँ तक अपना ये ख़त्म हो गया है आज का पोर्शन. अभी आज का पोर्शन जो ख़त्म हो गया उसके अंदर से मैंने थोड़ा सा होमवर्क देने का कोशिश किया है आपको. ये आपको करना है, सिंपल है. व्हाट इज़ द मीन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, डेफिनेशन डायरेक्टली लिखना है. व्हाई पोलन ग्रेन कैन रिमेन वेल प्रिजर्व्ड एज अ फॉसिल, पहले ही मैं बता चुका हूँ आपको. डिस्क्राइब डिफरेंट लेयर्स प्रेजेंट इन द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म. अभी एंजियोस्पर्म के अंदर कौन से लेयर्स रहते हैं. मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मतलब क्या पूछा है आपको समझ में आना चाहिए, ये एंथर की बात कर रहे हो. नेक्स्ट, डिस्क्राइब विथ नेट लेबल डायग्राम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. यहाँ पे अभी वो
बात कर रहे हैं एंजियोस्पर्मिक एनाट्रोपस ओवल की, तो ये आपको 3-3 मार्क के लिए ये लिखने हैं। 4 मार्क के लिए लिख के रखो तो 3 मार्क का तो आपने को आ जाएगा। ओके, एंड दिस इज़ बायोलॉजिकल। थैंक यू।